Hello friends. This video is about Google Summer of Code 2023. The links which I will use in this video are mentioned in description box. For those who are using laptop or PC having Windows, Linux or Mac can download the batch file and directly open all the links in one click. And for Android or iOS users, I have provided PDF files so you have to individually go through all the links. Also join Telegram group to get notified for Google Summer of Code 2023 changes and important deadlines. Additionally, you can ask your personal questions there. So now, let's get started with video. This video will contain all details of GSOC like selection process, strategies, etc. which no one have provided in any platform as far as I know. I am saying it because I was too a student like you all who tried to gain knowledge from the internet. If you want to quickly get selected, then don't forget to work with a group of people which have same technological interest. Remember that I am not saying this for promotion. Further, I will prove the advantage of it in this video. So don't skip the video. Let me introduce myself first. My name is Aditya Bathani. I am pursuing degree in Information and Technology field. Currently, I have entered into third year of my total 4 years engineering program, and I have created startup on web development where my role is to provide backend support of technologies and APIs. As a web developer, I write some blogs and trying to create more animated blogs as much as I can. Moreover, I am certified in the field of cybersecurity like SQL injection, scripting and bypassing user authentication systems. Last but not least, in this year I have also cracked Google Summer of Code 2022. Cracking was not enough for me. I have also received some unbelievable promotions in this internship as well. I saw some YouTubers saying GSOC is just a small internship which is not worth to crack. But I want to share you that this internship could provide you more than what you expect. The one and only condition is that don't be so greedy. It's the world of open source. So help maximum people you can and build a strong community. Rest all surprising perks will be automated towards you. Now the first question which people ask is which programming language or technologies do I know? The answer to this question is C, C++, HTML5, CSS3, PostCSS, Java, Python and Git. Also I have little bit exposure of Ruby, JavaScript, Node.js and React Native. Don't get scared of. Programming is my personal interest, so I learned all of this. For GSOC, 2 or 3 programming languages is more than enough to make you eligible. Problem solving skills is the most needed characteristic of a GSOC contributor, which is tested and noticed during selection process. Let's first understand what is GSOC. GSOC, termed as Google Summer of Code, is the marketplace where open source community comes with their listed 5 to 6 projects. This market is owned by Google and Google has online portal to search students who are either graduate or undergraduate to participate in these projects. These projects are completed in summer vacation and can be extended till early winters if more time is needed. Open source communities does not have any budget, so Google provides stipend to selected engineers, and after the internship Google offers job if the performance is good. There is no direct contact with Google, but if your work is unique, the bridge gets established on its own. If we see statistical data, every year GSOC changes its rules of eligibility. For past few years, GSOC was open to only undergraduates. In 2022, it is open for undergraduate and postgraduate, so the competition becomes harder. In this year, 205 organizations participates in GSOC and 200 get selected. Rest 5 are eliminated. Each organization offers 5 to 6 projects, so in total there are 1000 to 1200 projects available for students in world each year. GSOC offers 12-week standard timeline to students which could be extended up to 22 weeks if needed.
Extending projects does not increase the stipend amount. There are two different types of projects. The first category is medium-sized project, also called as 175 hours project. The stipend amount is $1,500 almost equal to 1.2 lakh Indian rupees. The second category is large size project, also called as 350 hours project, which is specially designed for college students who are in last semester. Stipend amount is $3,000 almost equal to 2.4 lakh Indian rupees. The untold fact: 98% of overall contributors are working for medium-sized projects, so it's better to choose medium-sized project. Large-sized project seems tough, and if you are not able to contribute 50% in project, then the stipend and certificate would not be provided. The rules are not very much strict. You will surely enjoy the coding if you know any programming languages used in project and you have problem solving skill. With the help of these two, you can easily complete at least half of the project on your own. For rest half portion, mentors will guide you how to do. In my case, I got selected for Drupal organization, which is in USA. It has strength of 20,000 people from world who design the software including me. Drupal helps their client to create a website for their business. I was just knowing CSS when I applied for GSOC. However, GSOC selection process is very time consuming. It depends on organization that how they will select a student. 50% of the organization select student directly from the proposal. I will describe proposal later in this video. The rest 50% selects you on the basis of your knowledge and some small tasks given to you. My company selected top 8 proposals and then they gave us group discussion topic. They said us to ask as many questions as we can, which are related to project. So I learned CSS3 in that week to understand the source code of my open source organization. Then I asked few questions. Also, I gave suggestions for how easily we can execute the project. And I caught one of my competitor bluffing in the chats, so I corrected him. So I got highlighted for the project, and then one day they announced my name to give GSOC grant for doing the project. Later on, my formal behavior with company provided me two mentors. One was Google authorized, which is provided to every GSOC contributor. The second mentor was provided to me as a bonus, which was matching with my technical background of ethical hacking, and he was board member of the organization too. I worked with this mentor and sometimes we do Zoom meetings. In this meeting, he found that my laptop speed was not matching with me. So he acknowledged me with the fundraiser of $700 in Twitter. The purpose was to buy the laptop of my own choice which can cope up with my speed. And within 24 hours, $800 were collected, which is $100 more, and it was transferred to me. So this way, open source organization could also help you financially. Also, there are few confidential credits which I can't disclose now because the project is still going on. In short, I don't know the limit of medium level project of $1,500, which already reached to $2,300 excluding some other increments which I have not considered. I described this in detail because I saw some YouTubers misleading students for their personal business profit. They say GSOC is just a small internship which do not provide Google company jobs. So I will show the detailed procedure that how to get maximum benefits from GSOC and Google. Just stay tuned with Easy Solutions, which has non-business outlook. Many of the terms are still unknown to you, like coding period, selection process, proposals, etc. So let's go to the computer screen. वेलकम टू द स्क्रीन गाइस। तो आइए हम पहले बात कर लेते हैं बैच फाइल के बारे में। ये है बैच फाइल जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो बेसिकली आपको जस्ट इसको डबल क्लिक करना है। तो अगर आपके लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली सारे लिंक जो मैंने इसके अंदर मेंशन की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। तो यही सारी लिंक है जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो
इसको ऑलरेडी मैंने लोड करके रखा हुआ है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी तक। ये रहा। तो आइए हम पहले बात कर लेते हैं जी शॉक के होम पेज के बारे में। हाँ, तो ये है जी शॉक का होम पेज, गूगल समर ऑफ कोड 2022। तो अभी तो मतलब 2022 प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए हेडलाइन ये है। नवंबर में ये हेडलाइन चेंज हो जाएगी जी शॉक 2023, और उसके सारे रूल्स वगैरह आप ये प्रोग्राम पेज पे देख सकते हैं, उसके जो नेक्स्ट होगा उसके रूल्स वगैरह। तो आइए पहले बात कर लेते हैं 2022 की। तो आप देख सकते हैं इसके पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये प्रोजेक्ट वगैरह उसके लिए। और ये जो है, ये टाइमलाइन है, ये हमको मैटर करती है, तो मैं इधर ही डायरेक्टली स्किप कर देता हूँ। ये जो पूरा कंटेंट है वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, वो शॉर्ट में मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू या फिर वीडियो बना के समझा दूँगा बाद में। तो अभी इसमें से भी सिर्फ चार डेट्स ही इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली उधर ही जाते हैं हम। मार्च 07 ये डेट है कि जब एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस होगी, तो इसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना चालू करना है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी है और हमारी जान पहचान थोड़ी बढ़ानी है। तो उससे क्या होता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो बाद में डेट है अप्रैल 4 से लेके अप्रैल 19 तक कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रपोज़ल भेजना रहता है। तो वो प्रपोज़ल की फॉर्मेट वगैरह कैसा होता है वो सब हम बाद में डिस्कस करते हैं। पर आप सिर्फ डेट और ये टाइमलाइन देख लीजिए कि अप्रैल 4 से लेके अप्रैल 19 तक आपको प्रपोज़ल भेजने हैं। बाद में ये जो एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट्स अनाउंस, मतलब कि मई 20 को आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका मतलब सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। और उसके बाद कोडिंग पीरियड चालू होगा, जो दिसंबर तक चलता है। तो आइए बात कर लेते हैं अभी प्रोग्राम के बारे में कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेट अगर आती है तो आपको क्या करना है। पहला स्टेप क्या होता है मार्च 07। तो आपका पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन जो जितनी भी लिस्ट आउट की हुई है, जैसे कि मैं होम पेज खोलता हूँ, और इसमें आपको मतलब एक बटन होगा जिसके मदद से आप देख सकते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट। तो आपको बॉटम तक स्क्रॉल कर लेना है। हाँ, जैसे कि देख सकते हैं ब्राउज ऑल 2022 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इधर आ जाएगा ब्राउज ऑल 2023 ऑर्गेनाइजेशन, और उस पर क्लिक करते ही आप ऑर्गेनाइजेशन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो गए। तो ये पेज में मतलब आपको कन्फ्यूज़न लगेगा, क्योंकि इन लोग ने ऐसा ही सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब इसका यूआई ऐसा थोड़ा बहुत है। तो बात कर लेते हैं ये सारी कीवर्ड्स की। ये पॉपुलर कीवर्ड्स है जो ऑटोमेटिकली इधर ही फ्लैश हो जाते हैं। अभी मान लीजिए कि मैं थर्ड ईयर में हूँ, जैसे कि आईटी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कोई है तो वो थर्ड ईयर में है, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ में उसको अलग अलग टेक्नोलॉजी आती होगी, जैसे कि वेब डेवलपमेंट है या फिर कोई डेटा साइंस है, ऐसा कुछ। तो बच्चे क्या करते हैं सब कि ये प्रोजेक्ट मतलब ये जो कीवर्ड है उसमें सर्च करेंगे, इसके 48 रिज़ल्ट आए, और बाद में ये वेब डेवलपमेंट, तो ये फील्ड में कुछ 23 आए, तो इसके सर्च करेंगे और इसमें से आप मतलब मिक्स करके प्रपोजल भेजते हैं। तो वो थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी भी मतलब डिक्रीज़ हो जाती है सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने के लिए पहले क्या करना है, कोई एक या दो आपको लैंग्वेज वगैरह टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा फिक्स करना है। जैसे कि आप मान लीजिए फ्लटर चूज़ करते हो टेक्नोलॉजीज़ में, या फिर लैंग्वेज में आप HTML चूज़ करते हैं, तो या एक या दो सिर्फ कोई भी मतलब सिलेक्ट कर लेनी है और उसको सर्च करना है। जैसे कि अभी मैं मान लीजिए बेसिक मैंने HTML सर्च किया, तो मुझे इधर 1 to 6 ही आ रही है। तो मतलब HTML अगर मैं सर्च करूँ तो मुझे ये 6 कंपनी में ही मतलब इंक्वायरी के लिए वो आगे बढ़ना होगा ऐसा। और ये जीसॉक का ऐसा रूल्स है कि आप किसी 3 कंपनी में ही प्रपोज़ल भेज सकते हो। तो मान लीजिए अभी मुझे आता होगा CSS, तो CSS में सर्च करता हूँ तो मुझे इधर 5 दिखाई दे रही है। मान लीजिए कोई और जिसकी मशीन लर्निंग, इसके भी दो ही है, तो मतलब अच्छा है, दोनों में ही अप्लाई कर देना है बाद में जिसमें सिलेक्शन हो। तो ऐसे कोई भी मतलब हॉट टॉपिक हो डेटा साइंस वगैरह, तो उसमें आप ऐसा करके
एक सिलेक्शन मतलब कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। तो पहले मतलब कैसे सिलेक्शन करना है वो भी बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं इसमें से कोई एक मतलब कि यही खोल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। शायद ये प्री लोडेड है, हाँ। तो ऐसा कुछ इंटरफेस रहेगा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डेट आपको पहले बता दूं मैं कि ये जो March 07 से लेकर April 04 ये जो बीच है, मतलब ये जो टाइमलाइन है, तो उसमें आपको पूरी डिटेल्स नहीं दी रहेगी। आपको डिटेल्स April 04 को ही सारी प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि March 07 को सिर्फ आप ये कंपनी की नेम जान सकते हो, जैसे कि ये कोई कंपनी है जो पार्टिसिपेट कर रही है। बाद में उसकी टेक्नोलॉजीज़ कि ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम ये कंपनी में। और ये जो उसका प्रोजेक्ट लिस्ट है, मतलब कि ये वन वर्ड में डिफाइन किया हुआ है सारे प्रोजेक्ट। ऐसा जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक कंपनी आती है तो उसके 5 से 6 प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसी तरह ये सारे ये डिफाइन किए हुए हैं वो प्रोजेक्ट। तो और ये उसका कंपनी का डिस्क्रिप्शन है थोड़ा बहुत। और ये जो है लिंक, ये आपको सोर्स कोड के लिए दिया हुआ है कि आपको ये कंपनी का सोर्स कोड डाउनलोड करना हो तो आप इस लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि ये जो March 07, तो उस डेट को आपको इधर तक या ये फ्लैश करेंगे वेबसाइट में। मतलब कि आपका ये कंटेंट इतना ही रहेगा, इसके नीचे आपको कुछ नहीं दिया रहता है। बाद में जब April 04 जैसे कि कंट्रीब्यूटर प्रपोजल ओपन, ये जब डेट आती है तब आपको ये दो लिंक फ्लैश रहेगी। मतलब कि जो कंट्रीब्यूटर गाइडेंस के लिए है, एक लिंक प्रपोजल की फॉर्मेट के लिए है। मतलब कि हर एक कंपनी में अलग अलग प्रपोजल रहता है, उसके मतलब प्रपोजल से मतलब अलग अलग फॉर्मेट रहती है, तो वो आप इस लिंक के द्वारा उसका फॉर्मेट समझ सकते हैं और वो आपको सबमिट करना रहता है। और ये व्यू आइडिया लिस्ट, मतलब कि ये जो इन लोगों ने रफली डिफाइन किए हुए हैं 6 प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या करना है, ये अभी कौन सा प्रोजेक्ट है, मतलब कि मीडियम साइज़ है कि लार्ज साइज़, ये इधर लिखा नहीं है, लेकिन वो सब डिटेल्स इसमें आप देख सकते हैं व्यू आइडिया लिस्ट में। हर एक कंपनी के लिए ऐसा सेम ही पेज ओपन होगा। मान लीजिए अभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर पाइथन में भी आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए टेंसर फ्लो एक पॉपुलर लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग और पाइथन, आई थिंक सो दोनों के लिए। इसका नहीं है टेंसर फ्लो, शायद नहीं है। मान लीजिए ये रूबी एग्जांपल है, तो रूबी पे क्लिक करता हूँ तो वो सेम ही इंटरफेस रहेगी, मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाँ, इधर 2-3 ऑप्शन कुछ चेंज हो सकते हैं। ये कंपनी के कॉन्टैक्ट के लिए जो ऑप्शन दिए हैं तो वो उसमें कुछ इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो सकता है, लेकिन बाकी सारे डिस्क्रिप्शन आपको सेम ही रहेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो स्टार्टिंग में इसमें भी सेम ही रहेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तक इधर तक ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी का सारा ये चीज़ जो है वो आपको बाद में देखने को मिलेगा जब प्रपोजल लाइन ओपन होगी तब। और एक अगर आपको इस कंपनी में प्रपोजल भेजना है रूबी में, तो इधर इसका फॉर्मेट रहेगा। और इसके जो टास्क है सिक्योरिटी और वेब, तो उसको मतलब उसके अंदर क्या करना होता है एक्जैक्टली, वो अगर आपको जानना है तो व्यू आइडिया लिस्ट। तो अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ कि अगर आपको द्रुपल में काम करना हो तो क्या आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी एक मतलब कि अगर आप आइडियलिस्ट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो हाँ, ये इसकी आइडिया लिस्ट है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन से टास्क है। जैसे कि 5 से 6 प्रोजेक्ट रहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट के मेंटर ये है। तो अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसके नाम मतलब नाम से पुकारो तो उसको अच्छा लगता है ऐसा। सर सर करके सब जगह हम नहीं बोल सकते, इसके लिए नाम से मतलब बोले तो कुछ ऐसा इम्प्रेशन अलग रहता है। तो वो सारी मतलब चीज़ें आपको इंग्लिश टीचर के पास से सीख लेनी है, लाइक इंजीनियरिंग एथिक्स इसको बोलते हैं। तो वो सब मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले ये प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये मतलब आप देख सकते हैं ये दूसरा तीसरा ऐसा प्रोजेक्ट डिटेल्स मेंशन की हुई है, और इसमें स्किल्स कौन सी यूज्ड है, तो ये स्किल है, मतलब ये 3-4 स्किल है। तो आपको ये सारी स्किल आनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है ये सारी की सारी। कोई भी 2 या 3 आपको स्किल आती है तो आप इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या था कि आपको मतलब कोई टेक्नोलॉजी सर्च करनी है, जैसे कि HTML। तो आपको 6 कंपनी मिल गई,
बाद में 6 कंपनी में आपको इंडिविजुअली जाना है और ये टेक्नोलॉजीज़ देखनी है कि मुझे इसमें से काफ़ी सारी मतलब 80% टेक्नोलॉजीज आती है, दूसरी कंपनी में 20% आती है, तो इस उस हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट करना है। तो आपको आपके पास मतलब ये 6 जो होगी ऑर्गेनाइजेशन वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसके साथ बात करना। अभी मैं प्रपोज़ल टाइम चालू नहीं हुआ है, याद रखिए, अभी सिर्फ एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हुई है। तो यही जैसे ही अनाउंस होती है तो उसके 2-3 दिन में तो आप मतलब अच्छे से ये पूरी सारी ये इसको आप क्या ये जो टेक्नोलॉजीज के हिसाब से आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो 2-3 दिन में। और उसके बाद आपको मतलब स्टार्ट करना है कंपनी के साथ बात वगैरह। तो वो कैसे करेंगे स्टार्ट, तो ये मैंने इंक्वायरी फॉर्मेट एक दी हुई है और आप इसको कॉपी मत करना डायरेक्टली, आप इसमें कुछ ऐड करना या इधर जो एंगुलर ब्रैकेट्स है उसमें आपका डिटेल्स सब कुछ डालना रहेगा। बाकी मैंने ये यूज़ किया था कंपनी को अप्रोच करने के लिए। तो काफ़ी सारी चैनल तो मतलब काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही चैनल यूज़ करती है जो जिसका नाम है स्लैक। ये ये एक व्हाट्सअप जैसा ही मीडियम है और उसके अंदर मतलब अलग अलग कंपनीज रहती है। तो इसके माध्यम से मतलब हम कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनीज के साथ। और नहीं तो फिर मेलिंग लिस्ट तो है ही, मतलब कि फॉर्मल मेल भेजना है और उसको उसको बताना है कि भाई मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, हाँ, कि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे आपके कंपनी में काम करना है, मुझे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आती है और अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो और आपको पूछना है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं मतलब प्रोजेक्ट की लिस्ट वगैरह, क्योंकि आपको ये इतना ही सिर्फ मतलब ये वन वर्ड ही आपको दिया रहता है। इसके डिटेल मतलब जानने के लिए अप्रैल 9 तक आपको वेट करना पड़ेगा, जब मतलब कि जो अप्रैल 04 तक, सॉरी, तो अप्रैल 04 तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर उससे पहले आप कोई कंपनी के पास से ये जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रोजेक्ट की डिटेल है वो आप अगर ले सकते हो तो अच्छा है, ताकि आप प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ सकें। और उसको मतलब कंपनी को बोलना है कि मैंने आपके मतलब ये वेबसाइट है उसमें से सोर्स कोड डाउनलोड किया और पूरा मतलब समझा वगैरह उसका कैसा वर्किंग होता है। और अगर कोई डाउट हो तो आप एक्सटर्नली कोई मतलब टेक्निकल डाउट हो इसके बारे में कि ये कैसे वर्क कर रहा है तो वो आप ये इंक्वायरी फॉर्मेट में इंक्लूड कर सकते हो। ऐसा स्टैंडर्ड आपको एक प्रिपेयर कर देना है वर्ड डॉक में और बाद में सारी कंपनीज जो 6 है तो उसमें 1 बाय 1 आपको मेल कर देना है। और उसके बाद जो इसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा लगता है, मान लीजिए कि कोई कंपनी बोलती है कि हाँ वी आर मोर लाइक इंटरेस्टेड फॉर यू, सो ऐसा मतलब आपको उसको टिक कर देना है कि भाई मैं इसको शॉर्ट लिस्ट में टॉप पर ऐसा ले जाऊंगा ऐसा। तो इस तरह से हमें कोई भी 3 कंपनी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि 3 ही मतलब हम भेज सकते हैं, ये सारे के सारी कंपनी को नहीं भेजना है, सिर्फ 3 ही प्रपोजल हम भेज सकते हैं। एक मतलब GSOC 2023 होगा तो वो 3 ही प्रपोजल आप भेज सकते हैं, मतलब कि कोई 3 ही ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसा। तो अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। तो मान लीजिए कि मैं ये लिंक पे गया, GSOC की drupal की है और ये फॉर्मेट वाली लिंक है, तो ये फॉर्मेट वाली लिंक मुझे ऐसे रीडायरेक्ट करिए। आप देख सकते हैं इधर तो कहीं पे भी फॉर्मेट मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये है कि गेटिंग स्टार्टेड विद GSOC। तो अगर Drupal में आप है तो कौन से स्टेप बाय स्टेप है, तो ये सब कुछ इतने स्टेप्स है, मतलब कि ये इन लोग का ऐप डाउनलोड करना रहेगा ऐसा कुछ, बाद में इसका रन करके देखना है प्रोजेक्ट वगैरह, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है इधर लिखा हुआ, लेकिन वो आप स्किप करते तो चलता है। आपका मतलब मेन कंसर्न यही है रहना चाहिए कि GSOC स्टूडेंट एप्लीकेशन टेम्पलेट, मतलब कि ये जो कंपनी है वो ये टेम्पलेट प्रीफर कर रही है। हाँ, मैंने ऑलरेडी लोड की हुई है, तो ये टेम्पलेट प्रीफर कर रही है। तो हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में रफ एक स्टैंडर्ड मैंने दिया ही ऑलरेडी है, ये पूरा इसका टेम्पलेट है। तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का बहुत तो अलग नहीं होता है, लेकिन सेम सेम ही रहता है। ये जो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और दूसरा है कि ये GSOC इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ उसमें क्वेश्चन पूछे रहते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस आता है। लेकिन जो आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन है, जैसे कि मान लीजिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और लास्ट का ये है 2 सेंटेंस टू चूज़ मी, ऐसा सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से अपने प्रपोजल को मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कि भाई वाई मी, वाई टू चूज़ मी ऐसा।
अगर चाहे तो आप कोई और सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, पर बस ध्यान रखना कि कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि प्रपोज़ल उन लोग के पास टाइम नहीं होता है इतने सारे प्रपोज़ल रीड करने के लिए। तो शॉर्ट एंड स्वीट अगर प्रपोज़ल बना सको तो अच्छा है, और इनमें से सारी अगर आप इन्फॉर्मेशन दे सको तो भी अच्छा है। क्योंकि अभी मान लीजिए कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ माई एसक्यूएल टेक्नोलॉजीज़ के प्रोजेक्ट, मतलब माई एसक्यूएल का जो ये DXP प्रोजेक्ट है उस पर अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल DXP या फिर क्लाउड का है, उसमें मैं माई एसक्यूएल टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला हूँ ये वाले प्रोजेक्ट में। तो फिर मुझे ये सारी PHP वगैरह कुछ मतलब काम की नहीं है। तो आप देख सकते हैं प्रपोजल में एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है PHP पे, तो आपको वो इंक्लूड नहीं करना है, ये पूरा स्किप ही कर देना है सेक्शन, ना ये क्वेश्चन मेंशन करना है या ना इसका आंसर। डायरेक्टली आपको ये पूरा सेक्शन स्किप कर देना है ऐसा। तो इस तरह से आपका मतलब प्रपोज़ल रेडी होगा। आप हाँ, लेकिन ये ऐसा स्टैंडर्ड प्रपोज़ल अगर आपने रेडी कर दिया होगा तो कॉपी पेस्ट करने में मतलब आसान रहेगी जब भी आप न्यू डॉक बनाओ तो। और इधर कंपनी का नेम लोगो कुछ ऐसा डाल सकते हैं आप टॉप हेडिंग में, और कुछ इसको मतलब बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं वगैरह। मैंने तो अभी तक कुछ दिया नहीं था, मैं मतलब तो मेरा सिलेक्शन कुछ और ही मतलब वजह से हुआ था। तो ऐसा होता है बेसिक सिलेक्शन। ऑलमोस्ट 50% कंपनी यही प्रेफर करती है कि प्रपोज़ल देखा और डायरेक्टली स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर लिया। पर प्रपोज़ल देखने से पहले अगर आपने उसके साथ इंक्वायरी फॉर्मेट जो मैंने दी है उसके मदद से आप अगर उसके साथ बात करेंगे, ये इधर ऑप्शन दी हुई है ऑलरेडी कांटेक्ट करने के लिए, तो अच्छा रहेगा ऐसा। और आइए अभी बात कर लेते हैं, बस यही था। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अभी अगर मैं एडवांस प्रिपरेशन मतलब एडवांस लेवल की बात करूँ, मान लीजिए कोई कंपनी है, सपोज़ कि ये कंपनी है, तो उसका कुछ अलग ही होगा सिलेक्शन प्रोसेस। मेरा जैसा हो सकता है, क्योंकि मेरा क्या हुआ था, पहले प्रपोज़ल सिलेक्ट हुआ था, और प्रपोज़ल सिलेक्ट होने के बाद हम जो 8 लोग थे वो ऐसा चैनल बनाई थी। ये पूरा स्लैक का इंटरफेस है, जैसे कि व्हाट्सअप रहता है ऐसा पूरे चैनल इधर बने, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप है, ऐसे पूरे ग्रुप्स है। और ये हमारा निक है, वो मेंटर है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन वगैरह सब कुछ ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है और पूरा मतलब मिस कर जाते हैं। अभी इसने पूछा, मतलब इसने कहा है कि आप प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए और मेंटर उसका जवाब देंगे ऐसा। तो ये था मतलब सिलेक्शन फेज़ के मतलब सिलेक्शन फेज़ में था। मई 6 आप देख सकते हैं टाइमलाइन। तो ये प्रपोज़ल तो मैंने भेज दिया था, ये अप्रैल 4 से लेकर अप्रैल 19 तक, बट लेकिन उसके बाद जब ये जो सिलेक्शन फेज़ होता है कि अप्रैल 19 से लेकर मई 12 तक उन लोग को सिलेक्ट करना रहता है कि कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है। तो ये लोग ने ऐसा मतलब टेक्निक यूज़ किया था कि अभी हम टेक्निकल क्वेश्चन के पूछेंगे स्टूडेंट्स को, मतलब स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आप पूछिए हमको टेक्निकल क्वेश्चंस। तो मैंने इधर सारे क्वेश्चंस पूछे थे, और ये एक था मुझसे मतलब 9 साल बड़ा था और उसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत था, लेकिन इसने डायरेक्टली सजेशन दे दिया। तो पहले मतलब उसने इंग्लिश में जो इधर लिखा था वही मतलब बराबर पढ़ा नहीं ध्यान से, इसके लिए ये एक वीक पॉइंट था। आप देख सकते हैं ये नीचे आते आते उसने ब्लफ करना चालू कर दिया था, और बाद में किसी ने बोला भी खरा कि मतलब बोला भी था कि ये आप गलत कर रहे हैं, तो वो वापस समझा ही नहीं। तो इस टाइम पे आपको मतलब मौका देख के सजेशन आपको दे देना है कि जिससे आपको मतलब हाईलाइटेड हो कि ये जो मतलब मैं आदित्य, और ये आदित्य है, उसको बहुत कुछ नॉलेज है इस प्रोजेक्ट के बारे में। और बाद में जब ये डेट आएगी उसकी, मतलब कि ये अराउंड मई 20, यस मई 20 एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट्स अनाउंस, तो तब आपको वो सिलेक्शन प्रोसेस और आगे मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन और वो रहेगा तो वो आपको समझाया जाएगा। तो ये पूरा सिलेक्शन फेज़ है, और ये मेरी टिप्स एंड टेक्निक्स थी कि मैंने प्रपोज़ल तो मतलब बहुत वीक बनाया था, लेकिन ये इंक्वायरी की मदद से ऑलरेडी पहले बातचीत कर रखी थी कंपनी के साथ, तो उन लोगों को मतलब पहले से ही पहचान थी कि भाई ये कर ही रहा है, मतलब ये कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। तो ये जब सिलेक्शन प्रोसेस चालू हुआ उसके पहले से मतलब मैंने कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत चालू कर दिया था। ये उसकी ऐसे ही चैनल है ऑफिशियल, तो इसमें मैंने कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत किया था, मतलब कि क्वेश्चन पूछना है या फिर कोई रेपोजिटरी या फिर ऐसा कुछ आपको दिख जाए कि इजी हो तो वो सब कुछ करना है।
अभी बात कर लेते हैं प्रपोज़ल की। तो प्रपोज़ल में भी कुछ लिंक्स वगैरह देनी रहती है, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, गिटहब हो गया, ऐसा। तो ओपन सोर्स करने से पहले आपको गिटहब का पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा नहीं तो कम से कम आधा नॉलेज होना चाहिए। तो अभी आपको मैं बेसिक इंट्रो दे देता हूँ गिटहब का, कि जैसे कि ये इसका नाम है, मतलब कि कोई पर्सन है, और ये जो उसका है ये इसका फोल्डर का नाम है। तो गिट के भाषा में हम इसको रिपोजिटरी बोलेंगे। तो ये रिपोजिटरी हमने लिंक की हुई है। तो अभी मैं मतलब ये कंप्यूटर में इसका फोल्डर होगा, तो वो कुछ भी उसमें चेंजेस करेगा और बाद में कमिट कर देगा, मतलब कि सेव कर देगा। तो वो पूरे का पूरा जो डिटेल्स जो मतलब चेंजेस की है ना, तो वो ऑनलाइन सर्वर पे अपलोड हो जाएगी। मतलब कि इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए आपका। तो इस मदद से आप पूरा लाइव कोडिंग कर सकते हैं कि भाई मैंने आज कोडिंग में कुछ चेंजेस किया और बाद में कमिट कर दिया, और किसी दूसरे ने कुछ चेंजेस किया तो वो मतलब देख सकता है कि भाई मैंने भी कुछ क्या चेंजेस किया है। तो इस तरह से गिटहब का मतलब इस्तेमाल होता है, और ये एक बेसिक प्रोफाइल है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि गिटहब मतलब आप अपनी प्रोफाइल इस तरह पूरी सजा दीजिए, तो अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी ये जो बेसिक है रीडमी फाइल जिसको बोलते हैं, जो रीडमी फाइल मतलब कि गिटहब में जब आप बेसिक कोई अकाउंट पे जाओ तो उसका इंटरफेस कैसा है, ये बेसिक है, ये बेसिक इंटरफेस है, लेकिन ये मेरे अकाउंट का इंटरफेस है। तो आप ऑब्वियसली अगर दो स्टूडेंट्स जीसॉक में अप्लाई कर रहे हैं तो ये ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो इस तरह से आपको अपनी जीसॉक मतलब ये गिटहब की प्रोफाइल बिल्ड कर लेनी है सारी इन्फॉर्मेशन डाल के। तो अभी इसको बिल्ड करने का मतलब ये तो HTML CSS पे ही पूरा बना है, लेकिन जिसको नहीं आती है तो उसके लिए ये एक वेबसाइट है जिसमें आप अपनी डिटेल्स डाल के नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज़ है, उसमें आपको टिक मार्क करना है और लास्ट में आप जनरेटेड रीडमी का ऑप्शन आएगा, ये जनरेट रीडमी। तो ये जो कोड आपको जनरेट करके देगा तो वो आपको रीडमी फाइल में इधर एडिट करके पेस्ट कर देना है, तो वो आपका मतलब ईजी रहेगा ऐसा आपको ये सब बनाने में। और बात कर लेते हैं लिंक्डइन। लिंक्डइन भी ज़रूरी है क्योंकि सारे के सारे जो ये जीसॉक मतलब कंट्रीब्यूटर्स मेंटर्स जो रहते हैं वो लिंक्डइन पे कनेक्ट रहते हैं। तो लिंक्डइन से आप उसके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। जैसे कि अभी द्रुपल था मेरे कंपनी का नाम, तो अभी मैं द्रुपल इधर सर्च करूँगा तो उसकी सारी लेटेस्ट मतलब कोई पोस्ट होगी, जैसे कि वो कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप एज ए हेल्प मतलब उसकी मदद से आप उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसे कि द्रुपल एसोसिएशन फ्रांस फ्रांस, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे मैंने ट्राई किया था। मतलब मुझे उतना कुछ मालूम नहीं था द्रुपल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पर हाँ लेकिन मैंने कुछ पोस्ट उसकी देख रखी थी, तो उसके मदद से ही मैंने ये सारे जो क्वेश्चंस पूछे थे स्टार्टिंग में, तो वो उसके मदद से ही सारे क्वेश्चन पूछे थे। हाँ ये नीचे आ गया शायद, नहीं द्रुपल CSS, ये तो द्रुपल गूगल की चैनल CSS मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि ये जो मेरा CSS मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है उसका चैनल है ये वाला। ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा लोड करने में। हाँ, तो मतलब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये लोग कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर IE11 अभी लेटेस्ट न्यूज़ बताऊँ तो इन माइक्रोसॉफ्ट एज जो है तो पहले वो मतलब रिक्वायर्ड था द्रुपल के लिए, तो अभी वो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि IE का कोड मतलब अलग से लिखना है। तो अभी सब IE के कोड है वो रिमूव कर रहे हैं। तो वो आप इसमें पूछ सकते हैं कि ये जो मैंने पढ़ा था लिंक्डइन में, तो इसमें आप ऐसा कुछ कर सकते हैं XYZ ऐसा करके। तो वो मेंटर्स लोग भी मतलब खुश होते हैं कि ये हमारे साथ टच में है हर एक प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारी मतलब बात कैसे भी करके आपको उसके सामने आपका अपना प्रोफेशनलिज्म जो है वो दिखाना है कैसे भी करके। तो ये थी सारी डिटेल्स, दैट्स ऑल। और हाँ आपको गिटहब जो है वो बेसिक तो आना चाहिए, कम से कम एक फोल्डर को कैसे कमिट करना है, इसकी ब्रांचेस चेंज करनी है वगैरह वगैरह। तो आप बेसिक इंट्रोडक्शन देख ले गिटहब का यूट्यूब पे या कहीं पे तो अच्छा है। और वरना आप वैसे भी आप मैन्युअली ट्राई करेंगे तो आप मैन्युअली सीख जाएंगे गिटहब को डाउनलोड करना या फिर उसमें अकाउंट बनाना। डाउनलोड नहीं करना चलेगा, ऑनलाइन ही अकाउंट बना दीजिए और ये सारे प्रोजेक्ट्स है, एक्शन है, ये एक बारी बारी आप ये सब इसमें जाएंगे तो आपको
थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है। ऐसा ये ब्रांचेस है तो इसका क्या काम है, इसमें आप टैक्स पे जाएंगे तो आपको मतलब थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। अगर ये नहीं तो किसी दूसरे की आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो या ऐसा कुछ। अभी मैं CSS के बारे में कुछ सीख रहा था तो आप देख सकते हैं सजेशन में आता है सब कुछ ऐसा। तो इस हिसाब से आप पूरा सीख सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट GSOC। और हाँ, GSOC 2023 में जो भी चेंजेस होगी वो मैं नवंबर या फिर हो सकता है तो अक्टूबर में आपको बताऊंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और ये जो GSOC का मेन पेज है उसमें भी आप अकाउंट बना के मेल सब्सक्रिप्शन ऑन कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही GSOC 2023 अनाउंस होगा तो आपको पूरा मतलब उसका मिल जाएगा, प्रोग्राम वगैरह, स्केड्यूल वगैरह, नोटिफिकेशन जो आप बोलते हैं वो। सो आइए बात कर लेते हैं कि अभी ये वीडियो तो ख़त्म होने को आई, लेकिन अभी आपको क्या करना है। तो आपको पहले ये करना है कि कोई एक फील्ड सिलेक्ट करनी है, क्योंकि बहुत से लोग ने कोई फील्ड ही सिलेक्ट नहीं की होती है, सिर्फ टेक्नोलॉजीज या फिर कोई लैंग्वेज लर्न करते रहते हैं, लेकिन उसमें आगे कहाँ जाना है वो लोग को कंफ्यूज रहता है। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप टेलीग्राम में एक मेरा ग्रुप है तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको उसमें थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। लाइक बहुत से लोग को पाइथन आती होगी, लेकिन पाइथन में कौन सी लाइब्रेरी वो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कि मैटप्लॉटलिब भी है, टेंसरफ्लो भी है, ऐसी 2-3 है शायद लाइब्रेरी। तो उसमें से वो मतलब वो आपको कहाँ जाना है वो डिसाइड करना है, AI में जाना है या फिर डेटा साइंस में जाना है। अगर वेब डेवलपमेंट बात करूँ तो लोग HTML सीखते हैं लेकिन आगे CSS नहीं सीखते वगैरह, ऐसा कुछ होता है प्रॉब्लम्स। और कुछ लोग वेब डेवलपमेंट छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी जो लिंकिंग पार्ट है, मतलब कि जो जेसन, मतलब कि जावास्क्रिप्ट और वो सब, तो वो लोगों को हार्ड लगता है। तो वो सब हम डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। तो वो टेलीग्राम चैनल ओपन है तो आप उसमें डिस्कशन के लिए पार्ट ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि अभी ये GSOC के ऊपर भी ये बहुत मतलब कम इन्फॉर्मेशन है। अभी नेक्स्ट GSOC 2023 थोड़ी इनसाइड न्यूज़ बताऊँ तो थोड़ी हार्ड रहने वाली है, क्योंकि वो लोग स्टैंडर्ड एक मेथड मतलब सिलेक्शन प्रोसेस की बारे में बात कर रहे हैं कि कोई स्टैंडर्ड एक सिलेक्शन प्रोसेस हो तो सबके लिए अच्छा है, ताकि कोई बच्चे को ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है कि मेरा 2 बार इंटरव्यू लिया, और किसी बच्चे को लगता है कि मेरे सिर्फ CV या रिज्यूम में से ही या फिर मेरे प्रपोजल में से ही मुझे सिलेक्ट कर लिया, ऐसा भी होता है। तो वो कंप्लेंट अभी जा रही है, तो उसके बारे में गूगल सोच रहा है, देखते हैं अभी GSOC 2023 में क्या वो चेंजेस लाता है। तो मैं ये टारगेट रखता हूँ कि भाई ये मतलब 500 सब्सक्राइबर हो जाए तो ये GSOC के ऊपर मैं आगे आपको हेल्प करूँगा वीडियो और टेलीग्राम के मदद से। अभी थर्ड टास्क ये है, मतलब तो ये सब्सक्राइबर ऐसे तो ओके, तो ये सब्सक्राइबर ऐसे तो नहीं हो गए, आपको मतलब शेयर करना होगा तो शेयर ज़रूर कीजिए। बाद में थर्ड है कि लर्न 2 और 3 कोडिंग लैंग्वेजेस। अभी आपने एक सिलेक्ट कर लिया कि आपको ऐप डेवलपमेंट करना है, तो फिर आप कोडिंग लैंग्वेजेस जैसे कि डार्ट हो गई या फिर कोई मतलब टेक्नोलॉजीज भी सीखनी है, सिर्फ कोडिंग लैंग्वेजेस नहीं, किसी 1-2 में आप माहिर बन जाए तो दिसंबर तक आप जितना भी मतलब कर सकते हो तो उतना अच्छा है। और जनवरी से मतलब ये भी आप प्रिपेयर कर लेना, CV रिज्यूम रफली, और GSOC 2023 का प्रपोजल और इंक्वायरी फॉर्मेट, क्योंकि अभी सारी लिंक्स आपको दिखाई दे रही होगी, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो लिंक्स थी, तो वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको दिखाई रहेगी, लेकिन बाद में वो ऑटोमेटिकली दिसंबर के बाद क्लोज हो जाएगी। तो वो आप अभी उसका प्रोजेक्ट लिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि मतलब प्रोजेक्ट लिस्ट रिपीट तो नहीं होते, बहुत रेयर केस होते हैं, लेकिन कंपनी सेम ही रहती है। अभी ये कोई XYZ कंपनी है तो उसका ये मैंने कंपनी सिलेक्ट की हुई है, ये GNSSDR, तो उसके जो प्रोजेक्ट्स है वो रिपीट नहीं हो गए। ये जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स है लेकिन वो रिपीट नहीं हो गए, लेकिन इसमें से हो सकता है कोई एक प्रोजेक्ट अधूरा रह गया तो वो रिपीट हो सकता है। जो कंट्रीब्यूटर है GSOC का, तो वो GSOC के बाद उसने पैसा मतलब ले लिया और बाद में काम नहीं कर रहा हो तो वो उसका नेगेटिव पॉइंट होता है, मतलब वो नेक्स्ट GSOC में पार्टिसिपेट नहीं ले सकता है ऐसा। तो वो भी ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए आप अभी से मतलब ये लिंक आपको
ये नीचे इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें डायरेक्ट व्यू आइडिया लिस्ट पे है। तो वो व्यू आइडिया लिस्ट में आप जाके अभी एक्सप्लोर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी नहीं करना है, दिसंबर में करना है, क्योंकि दिसंबर पूरा मंथ आप ये कर सकते हो। अभी आपको सिर्फ कोडिंग लैंग्वेज में ही ध्यान देना है। तो ये अभी आपका टास्क है कुछ, और टेलीग्राम ग्रुप में मतलब आप सब्सक्राइब कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें मैं डेली ना डेली कुछ पोस्ट करता रहूँगा, जैसे कि इंजीनियरिंग एथिक्स का कोई कोट हो गया ऐसा वगैरह, कुछ मोटिवेशनल कोट्स हो गए ऐसा। तो आपको डेली कुछ ना कुछ आपको याद दिलाता रहेगा कि भाई मुझे ये इसका टास्क है, आज का टास्क ये है ऐसा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।